This short story unfolds the story of Rani Laxmibai, the renowned Queen of Jhansi. We all know her story of bravery, and her life story is found in many history books describing her contribution to the Indian struggle for independence. This story is written by O.L. Henderson and Richard Ward, who narrate the story from their perspective and showcase in the story her childhood days and her valor at the time of her death. यह लघु कहानी झांसी की प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को उजागर करती है। हम सभी उनकी बहादुरी की कहानी जानते हैं और उनकी जीवन कहानी कई इतिहास की किताबों में मिलती है जो स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष में उनके योगदान का वर्णन करती हैं। यह कहानी O.L. हेंडरसन और रिचर्ड वॉर्ड द्वारा लिखी गई है, जो कहानी को उनके दृष्टिकोण से दर्शाते हैं और कहानी में उनके बचपन के दिनों और उनकी मृत्यु के समय की वीरता को दर्शाते हैं। Rani Laxmibai was born in the holy city of Varanasi on November 21, 1835. She was named Manikarnika after one of the bathing ghats in Varanasi. Her mother affectionately called her Manu. रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 21 नवंबर 1835 को वाराणसी के पवित्र शहर में हुआ था। उनका नाम वाराणसी के एक स्नान घाट के बाद मणिकर्णिका रखा गया था। उनकी मां प्यार से उन्हें मनु कहती थीं। लक्ष्मीबाई's father was a courtier in the court of the Maratha ruler पेशवा बाजीराव II. लक्ष्मीबाई के पिता मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। लिटिल मनु was a favorite of the old पेशवा. छोटी मनु बूढ़े पेशवा की पसंदीदा थी। Manu was a brave girl. One day, a large cobra appeared in the Peshwa's court. It frightened everyone. Manu said that it was wonderful to see the snake put fear into everyone, and that too in such a small time. Manu एक बहादुर लड़की थी। एक दिन पेशवा के दरबार में एक बड़ा कोबरा दिखाई दिया। इसने सभी को भयभीत कर दिया। मनु ने कहा कि यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि सांप ने सभी को भयभीत कर दिया और वह भी इतने कम समय में। गंगाधर राव, द रूलर ऑफ झांसी, अ स्मॉल स्टेट इन उत्तर प्रदेश, लॉस्ट हिज क्वीन. झांसी के शासक गंगाधर राव ने अपनी रानी को खो दिया। हिज प्रीस्ट तात्या दीक्षित सॉ मनु एंड प्रपोज्ड that she would be a good queen for the king. Manu was less than 8 and the Maharaja was 21. The priest also made a prophecy that the family of Manu's husband will become famous because of her deeds. उनके पुजारी तात्या दीक्षित ने मनु को देखा और प्रस्तावित किया कि वह राजा के लिए एक अच्छी रानी होंगी। मनु 8 से कम की थी और महाराजा 22 के थे। पुजारी ने यह भी भविष्यवाणी की कि मनु के पति का परिवार मनु के कार्यों के कारण प्रसिद्ध होगा। So, Manu and Gangadhar Rao, the Maharaja of Jhansi, were married. At the time of the wedding, Manu got a new name, Laxmibai. इसलिए झांसी के महाराजा गंगाधर राव और मनु का विवाह हो गया। शादी के समय मनु को एक नया नाम मिला, लक्ष्मीबाई। As a queen, Laxmibai cooked delicious dishes for her husband and looked after an excellent library in the palace. लक्ष्मीबाई ने अपने पति के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उनके महल में एक उत्कृष्ट पुस्तकालय की भी देखभाल की। In 1853, the Maharaja died of serious illness.
Since he had no child of his own, a day before his death, he adopted a 6-year-old boy as his son and called him Damodar Rao. 1853 में महाराजा की एक गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गई। चूंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले 6 साल के एक लड़के को गोद लिया और उसे दामोदर राव नाम दिया। The Maharaja did so because he did not want Jhansi to come under the British rule. The East India Company had declared that any Indian state whose ruler died without a child would come under their rule. महाराजा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि झांसी ब्रिटिश शासन के अधीन आए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने घोषणा की थी कि कोई भी भारतीय राज्य जिसका शासक बिना बच्चे के मर गया हो, उनका शासन उनके अधीन आ जाएगा। After the death of the Maharaja, the British refused to accept Damodar Rao as the new ruler of Jhansi because they wanted to take over the state. Lord Dalhousie was the Governor General of India and Major Ellis was his agent in Jhansi in 1854. Dalhousie instructed Major Ellis to take over the state. महाराजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का नया शासक मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वे राज्य पर अधिकार करना चाहते थे। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे और मेजर एलिस 1854 में झांसी के उनके एजेंट थे। डलहौजी ने मेजर एलिस को राज्य संभालने का निर्देश दिया। Major Ellis came to the Rani's court to announce that from now onwards East India Company would rule over Jhansi. But Laxmibai said that मेरी झांसी नहीं दूंगी. I will not give up my झांसी. मेजर एलिस रानी की अदालत में यह घोषणा करने के लिए आए कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी झांसी पर शासन करेगी, लेकिन लक्ष्मीबाई ने कहा मेरी झांसी नहीं दूंगी। But the British took over Jhansi. Rani Laxmibai lived in the palace for next 3 years. She got a small pension. लेकिन अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अगले 3 वर्षों तक महल में रहीं। उन्हें छोटी पेंशन मिलती रही। The Indian soldiers of the East India Company had many complaints against the British. They got much less salary than the British soldiers. They could not rise to higher posts in the army. They were forced to shave off their beards and give up their turbans. ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ कई शिकायतें थीं। उन्हें ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता था। वे सेना में उच्च पदों तक नहीं बढ़ सकते थे। उन्हें अपनी दाढ़ी मुंडवाने और पगड़ी उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा था। In Bengal, 30 soldiers were blown off from the mouths of guns. बंगाल में 30 सैनिकों को बंदूकों के मुंह से उड़ा दिया गया था। In 1857, the British company introduced a new rifle in the army. Its cartridges had a greased paper cover. The soldiers had to bite off the end of the paper cover. The grease of the paper cover was made of beef and pig fat. The Hindus could never taste beef and pork was prohibited for the Muslims. 1857 में ब्रिटिश कंपनी सेना में एक नई राइफल लाए। इसके कारतूसों में एक पेपर कवर था। सैनिकों को पेपर कवर के अंत तक काटना पड़ता था। पेपर कवर का ग्रीस बीफ और सुअर की चर्बी से बना था। हिंदुओं को गौमांस का स्वाद नहीं ले सकते थे और मुसलमानों के लिए सुअर का मांस निषिद्ध था। At Meerut, 90 Hindu and Muslim soldiers refused to use the cartridges. They were dismissed and put in chains. मेरठ में 90 हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। उन्हें खारिज कर दिया गया और जंजीरों में डाल दिया गया। The rest of the soldiers killed their officers and marched to Delhi. बाकी सैनिकों ने अपने अधिकारियों की हत्या कर दी और दिल्ली के लिए चल पड़े। In Delhi, they chose old Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar
as the Emperor of India and drove the British out from Delhi. दिल्ली में उन्होंने पुराने मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत के सम्राट के रूप में चुना और अंग्रेजों को दिल्ली से बाहर निकाल दिया. Thus, the revolt spread all over northern and central India. In June 1857, the soldiers in Jhansi revolted. They killed the British officers and captured the fort. In March 1858, the British attacked back Jhansi. Rani Laxmibai defended the fort. People of Jhansi fought bravely, but the British won. They captured the fort and killed the people mercilessly. इस प्रकार विद्रोह पूरे उत्तरी और मध्य भारत में फैल गया. जून 1857 में झांसी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया. उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और किले पर कब्जा कर लिया. मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया. रानी लक्ष्मीबाई ने किले की रक्षा की. झांसी के लोगों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेज जीत गए. अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और लोगों को निर्दयता से मार डाला. रानी लक्ष्मीबाई escaped from the fort under the cover of the night. She dressed as a man. She took her adopted son with her. A small band of soldiers accompanied her. In one night, Laxmibai covered 21 miles on her horse. रानी लक्ष्मीबाई रात की आड़ में किले से भाग गईं. उन्होंने एक आदमी के रूप में कपड़े पहने. वह अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपने साथ ले गई. सैनिकों का एक छोटा सा दल उनके साथ था. एक रात में लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े पर 21 मील की दूरी तय की. रानी लक्ष्मीबाई joined another rebel leader, तात्या तोपे. They captured ग्वालियर. रानी लक्ष्मीबाई एक अन्य विद्रोही नेता तात्या टोपे के साथ विद्रोह में शामिल हो गईं. उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया. On June 17, 1858, Rani Laxmibai came face to face with the British. The Rani and her soldiers were dressed in blue uniforms. 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सामने आई. रानी और उनके सैनिक नीली वर्दी पहने थे. The Rani had been fighting for 10 hours. Chased by the British soldiers, the Rani urged her horse to cross the Sonarakha Nalla, a narrow stream. रानी 10 घंटे से लगातार लड़ रही थी. जब ब्रिटिश सोल्जर्स ने उनका पीछा करा, तो रानी ने अपने घोड़े से आग्रह किया कि वो सोनारखा नल्ला, जो एक पतली सी नली थी, उसको पार करे. Rani Laxmibai was about to cross the Nalla when a British soldier killed Mandarbai, a Muslim girl who was Laxmibai's lifelong companion. She was with Rani all the time. Rani Laxmibai killed that soldier with one stroke of her sword. वह नाले को पार करने वाली ही थी कि तभी एक ब्रिटिश सैनिक ने मंदरबाई को मार डाला, जो एक मुस्लिम लड़की थी जो लक्ष्मीबाई की लंबी उम्र की साथी थी. वह हर समय रानी के साथ थी. रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार के एक वार से उस सैनिक को मार डाला. But then another soldier struck her on the head. Her horse was frightened and refused to move. Another British soldier shot the Rani in the chest. The horse now crossed the Nalla. लेकिन एक अन्य सैनिक ने उनके सिर पर वार कर दिया. उनका घोड़ा घबरा गया और उसने हिलने से मना कर दिया. एक अन्य ब्रिटिश सैनिक ने रानी को सीने में गोली मार दी. घोड़ा अब नाले को पार कर गया. Before her death, Rani Laxmibai told her soldiers, "Don't let the British touch my body." अपनी मृत्यु से पहले रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों से कहा, अंग्रेजों को मेरे शरीर को छूने मत देना. Rani's soldiers lay her on the haystack near the Nalla and set fire to it. When the British came, they only got the ashes of the brave Rani of Jhansi. रानी के सैनिकों ने उन्हें नाले के पास घास के ढेर पर लिटा दिया और उसमें आग लगा दी. जब अंग्रेज आए तो उन्हें केवल झांसी की बहादुर रानी की राख मिली.
Thanks for watching the video, and do not forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos.